Hello and welcome students of Discovery International School of Class 11th to the online platform that has been created for your own preparation of NEET and JEE, and that is the YCL, that is the brand of education, and in collaboration with our school, that is Discovery International School, which will be presenting before you the best coaching facility which will be available for the preparation of NEET and JEE. For that, you have to just subscribe to our channel. You have to search for this one in the YouTube and subscribe to our channel and hit the bell icon to receive all the new videos that we will be posting in all the subjects, that is your PCMB, the physics, chemistry, biology and your maths from time to time. So let's begin with today's lecture. We were actually discussing about the human respiratory system, in which we had already started and given you a total vital thing कि how is the respiratory system, अब कैसे करके ये आपके साथ digestive system और circulatory system के साथ एक आपका मेल खा के वो काम करता है. Today we will be looking into the next part, that is the second part of this chapter, in which we will be discussing about the respiratory tract. Clear? So we will be discussing about the respiratory tract. सबसे पहले, what do you mean by this tract? The tract means the pathway by which all the organs will be associated and they will be all performing the same function, that is carrying the air from the atmosphere and bringing it to the lungs. Clear? So कहाँ कहाँ क्या क्या आपके respiratory tract है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं. अगर मैं respiratory tract के बारे में बताता हूँ, so we can generally divide this tract into two parts, that is the upper respiratory tract, the upper respiratory tract, which is also abbreviated as the URT, और इसके साथ हो जाएगा the lower respiratory tract, the lower tract. अब कौन से ऐसे पार्ट्स होंगे विच विल बी बिलोंगिंग टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और वो कौन से पार्ट है जो आप विल बी बिलोंगिंग टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ना नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे, अगेन आई विल बी ड्राइंग अ ह्यूमन फिगर ओवर हियर और फिर मैं आपको समझाऊंगा. सपोज दिस इज द फेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. So here is the nostrils which will be indulging into the nasal chamber. This will be the pharynx portion, and over here जहाँ पे आपका गला आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले there will be the larynx, and then it will be leading to the trachea. Trachea will be dividing and it will be entering into the two lungs. और ठीक इसके पीछे से आपका द फूड पाइप विल बी नाउ मूविंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका द नोज, इसको हम लोग नोज बोल सकते हैं. दिस इज द नेजल चेंबर, नेजल चेंबर. ये जो पोर्शन है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं फेरिंग्स. This portion is your larynx. This is the windpipe, which can also be said as the trachea. And finally, the trachea will be divided into the two bronchus, which will be leading to the
lungs. ठीक है, this is a rough diagram of the respiratory tract. Now, nose से लेके जब हवा या the gases, the oxygen enters into the nasal chamber through the pharynx, when it will be entering into the larynx, and after that it will be entering into the windpipe. So from the nose से लेके to larynx, ठीक है, नोज से लेते हुए larynx, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग नाम दे सकते हैं द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्लियर? और जब द विंड पासेस इनटू द विंड पाइप, सो फ्रॉम द विंड पाइप, दैट इज फ्रॉम द ट्रैकिया इनटू द लंग्स, ये जो पूरा आपका ट्रैक्ट होके रखा हुआ है, दैट इज the trachea dividing into the bronchus, the primary bronchus, secondary, tertiary, and finally the bronchioles will be entering into the alveoli. उस जगह तक जो भी आपके पार्ट्स होके रखा हुआ है, from the trachea till the alveoli of the lungs, all will be included in the lower respiratory tract, जिसको हम लोग कॉमनली नाम दे सकते हैं LRT. समझ में आया? क्लियर? चलिए एक बार और देख लेते हैं. We were discussing about the respiratory tract. And first of all, the respiratory tract in human beings is divided into two parts. That is, the upper respiratory tract, which is also known as the URT, and the lower respiratory tract, which is also named as LRT. Clear? Ab, this is a rough diagram of the entire respiratory tract. So starting from the nose, the air will be moving in. Through the pharynx, through the larynx, the air will be passing into the windpipe. And finally the windpipe, that is the trachea, will be dividing into the bronchi or the bronchus, and it will be entering into the respective lungs, that is the right and the left lungs. After entering into the lungs, the trachea will be again getting subdivided into primary bronchus. Primary will be dividing into the secondary, secondary will be dividing into the tertiary, and finally the thinnest bronchioles will be entering into a balloon-shaped organ, that is the alveolus. Clear? So कैसे करके हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में ना. जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, दैट विल बी द पोर्शन फ्रॉम द नोज टिल द लैरिंग्स. ये आ जाएगा आपका यूआरटी के अंदर, और लैरिंग्स के नीचे दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द विंड पाइप, जिसको हम लोग ग्लॉटिस भी बोलते हैं. So from the glottis till the alveolus in the lungs, all these will be the part of the, that is the LRT or the lower respiratory tract. यहां तक समझ में आया? अब हमें देखना है एक एक चीज को थोड़ा और गहराई से जाके कि इनके एनाटॉमिकल पार्ट्स क्या है. What are the sub parts of the nose, the pharynx, the larynx, ये सब हमें अच्छी तरह देखना है. क्लियर? इससे पहले एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहूंगा. यहां पर देखो कि ये जो फेरिंग्स पोर्शन है, तो यहां पर क्योंकि आपके इसके नीचे से दिस इज द बक्कल कैविटी, इसको हम लोग बक्कल कैविटी नाम दे सकते हैं, जहां से आपका फूड एंटर करेगा. तो ये जो फेरिंग्स पोर्शन है, इस फेरिंग्स के पोर्शन में बोथ द एयर एज वेल एज द फूड, ठीक है, दोनों ही पास हो रहा है. सो देयर द फेरिंग्स इज अ कॉमन ओपनिंग बोल सकता हूं, या एक स्ट्रक्चर बोल सकता हूं, जहां से हवा और आपका खाना दोनों ही जा रहा है टू द लोअर पोर्शन, दैट इज थ्रू द आपका लैरिंग्स और आपके नीचे विंड पाइप और जो आपका फूड पाइप होगा. तो यहां से क्या होगा ना, जो हवा होगा, द एयर विल बी नाउ एंटरिंग इनटू द ट्रैकिया एंड द फूड विल बी एंटरिंग इनटू द ईसोफेगस. Clear? So pharynx will be a common for both the passage of the air and the food. ठीक है? So now let us have a close look at the first part of the respiratory tract, that is our nose or the nasal chamber. Clear? So now we will be discussing about the nose, following with the nasal chamber. Nasal chamber. अब सबसे पहले यहां पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा
और डायग्राम ड्रॉ करके मैं बताऊंगा कि कैसे करके आपके ये नेजल चेम्बर को हम लोग डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट पार्ट्स। एंड वी नो दैट ऑल्सो नोज इज अ सेंस ऑर्गन। सो इसके जो आपका सेंसरी नर्व्स है वो कहाँ से, व्हाट आर द, बाय द वे, व्हाट आर द सेंसरी नर्व्स ऑफ द नोज नेम्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विच कैन सेंस स्मेल, इट इज नोन एज द ऑल्फैक्टरी रीजन। क्लियर? तो इट विल बी द ऑल्फैक्टरी रीजन, आपको याद रखना है, दैट विल बी सेंसिंग द स्मेल ऑफ द फूड और एनीथिंग अराउंड अस। क्लियर? सो वो हम लोग देखेंगे कहां पर है। तो नॉर्मली अगर हम लोग कोई भी नोज या उस पूरे पोर्शन को, नेजल चेंबर को अगर हमें डिवाइड करना है, हम लोग जो नेजल चेंबर होगा उस नेजल चेंबर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते। क्या क्या 3 हिस्सा? सबसे पहले जो होगा उसको हम लोग नाम देंगे नेजल वेस्टिब्यूल, उसको हम लोग नाम देंगे नेजल वेस्टिब्यूल। आफ्टर दैट द मेन रेस्पिरेटरी रीजन ऑफ द नोज, द रेस्पिरेटरी रीजन ऑफ द नोज, जिसको हम लोग कंडीशनर रीजन भी बोलते हैं। कंडीशनर रीजन भी हम लोग इसको बोलते हैं। क्लियर? एंड फाइनली द लास्ट, दैट विल बी द ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है? सो द नेजल वेस्टिब्यूल, द रेस्पिरेटरी रीजन एंड द ऑल्फैक्टरी रीजन। एंड इट विल बी द ऑल्फैक्टरी रीजन जिसका मेन काम होगा सेंस को रिसीव करना एंड टू पास इट थ्रू द सेंसरी नर्व्स टू द ब्रेन। क्लियर? ठीक। अब ये क्या क्या चीजें हैं और कहां कहां है ये हम लोग चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप अपने शरीर को देखोगे अच्छी तरह इन द फ्रंट ऑफ अ कैमरा, सो आप अपने नाक को देखिए, और ये जो आपका नोज है इसके आपके लैटरल जो वॉल्स है, दैट इज अ लेयर ऑफ स्किन विच इज सराउंडिंग द नोज। ठीक है? सो ये जो 2 वॉल्स है इसको हम लोग नाम दे सकते हैं द लैटरल वॉल्स। क्लियर? और यहां पर बिल्कुल बीचों बीच जो आपका एक बोनी सरफेस दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द नेजल सेप्टम। जैसे हार्ट के अंदर आपके दोनों साइड्स, दैट इज द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड को डिवाइड करने के लिए एक मस्कुलर शीथ पाया गया था विच इज कॉल्ड द सेप्टम ऑफ द कार्डियक। दैट इज लाइक आपका बिल्कुल वैसे ही हमारे नाक में भी द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड को डिवाइड करने के लिए जो बोनी सरफेस आपका प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड द नेजल सेप्टम। क्लियर? तो मैं क्या किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि सपोज इफ आई ड्रॉ नोज। क्लियर? सो ये जो बोनी पार्ट होगा, दैट बोनी पार्ट विच इज एक्चुअली डिवाइडिंग द राइट एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, दिस विल बी नोन एज द नेजल सेप्टम। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे नेजल सेप्टम। और ये जो द स्किन फोल्डिंग्स दोनों तरफ जो होता है, इसको हम लोग नाम दे देंगे द लैटरल वॉल्स। इसको हम लोग नाम देंगे लैटरल वॉल्स। क्लियर? एंड ऑब्वियसली द नोज विल बी हैविंग 2 होल्स ओवर हियर, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं द नॉस्ट्रिल्स। बट कैसे नॉस्ट्रिल्स? ना, दे आर प्रेजेंट एक्सटर्नली, सो इसको हम लोग नाम देंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इसको हम लोग नाम देंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है? सो ये आपका आउटर मॉर्फोलॉजिकल पार्ट हुआ। अब हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ कि कैसा है ना। सपोज हम लोग ऐसे करके खड़े हैं एंड अ प्लेन इज डिवाइडिंग आवर बॉडी। क्लियर? अ प्लेन इज डिवाइडिंग आवर बॉडी। सो ये जो पोर्शन होगा, अगर मैं खोल दूं अपना पूरा इस स्कल को, सो जो आपका पोर्शन दिखाई देगा उसको मैं अभी ड्रॉ करके यहां पे आपको समझाने वाला हूं, द नेजल चेम्बर। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सो if I talk about clear, so ये हो गया आपका द नोज
and now I am entering into and will be discussing about the nasal chamber. तो यहां पर ये जो आपका होगा, दिस इज योर द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जो हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जिसको हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स भी बोल सकते हैं, ठीक। अब यहां पर दिस इज द माउथ, सो दिस विल बी द बक्कल कैविटी विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज डाइजेशन। और जब बक्कल कैविटी हम लोग डिसाइड कर रहे थे, तब आप बात करो कि यहां पर जो आपका टीथ और गम्स होंगे, यहां पर एक हार्ड प्लेट होता है बोन का, जिसको हम लोग नाम देते हैं द पैलेट। हम लोग इसको पैलेट नाम देते हैं, दैट इज द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी एंड द रूप ऑफ द बक्कल कैविटी। सो हम लोग बोल सकते हैं ये जो पैलेट है, दिस इज एक्चुअली सेपरेटिंग द नेजल चेंबर फ्रॉम द बक्कल कैविटी। अब ये जो पैलेट है, दिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज द एंटीरियर पोर्शन, दैट इज दिस पोर्शन ओवर हियर, दिस विल बी जनरली टर्म्ड एज द हार्ड पैलेट। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे हार्ड पैलेट। सो एंटीरियर विल बी हार्ड, एंटीरियरली विल बी हार्ड, एंटीरियरली इट विल बी द हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियरली पीछे के साइड जो होगा, इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट आपका कहां पर होगा? पोस्टीरियरली प्रेजेंट। यहां तक समझ में आया? ठीक। सो हम लोग यहां की बात कर ले, वी आर फर्स्ट एक कैविटी ड्रॉ करेंगे। आपको सबसे पहले समझाना है कि नेजल कैविटी क्या है, क्लियर। सो जहां पर भी कैविटी होगा, सो ऑटोमेटिकली इट विल बी बाउंडेड बाय फोर साइड्स। तो दोनों साइड में मैंने क्या बोला है? द लैटरल वॉल्स, क्लियर। नीचे कौन है? द फ्लोर में होगा आपका द पैलेट, और ऊपर में पोर्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, सो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसा एक हार्ड प्लेट टाइप का, ठीक है। एक्चुअली दिस प्लेट इज द प्लेट ऑफ द इथमॉइड बोन, क्लियर। और एक्चुअली ये क्या करेगा? नाक के ऊपर क्या है ना, यहां पर योर आई इज प्रेजेंट और उसके ऊपर द ब्रेन। तो दिस इथमॉइड बोन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इथमॉइड बोन। एंड ये इथमॉइड बोन इज अ बहुत लंबा सा स्ट्रक्चर है, बट ये जो आपका द अपर सरफेस ऑफ द नोज जो है, दैट इज एक्चुअली द cribriform plate. It is known as the cribriform plate of the ethmoid bone. Clear? Got it? So क्या हुआ? देखो यहां पर हो गया lateral walls and the bony structure, that is the nasal septum. इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? nasal septum नाम दिए थे, ठीक। The upper portion, that is the cribriform of the ethmoid bone, clear. And finally we have नीचे की तरफ the hard palate, और बिल्कुल आपके एंड में जाके यहां पर भी आपके ऐसे ही एक ओपनिंग होगा, जिसको हम लोग नाम देंगे द इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इसको हम लोग नाम देंगे इंटरनल नॉस्ट्रल्स, क्लियर। या इसको हम लोग इंटरनल नेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो आपका अब हमारे पास एक ऑल ओवर कैविटी आ गया है। अब ये जो नेजल सेप्टम है, ये जो अगर मैं अपना स्कल ड्रॉ करूं यहां पर, दिस इज द आई, दिस इज योर नोज ओवर हियर, क्लियर। सो ये जो आपका सेप्टम है, यहां पर जो कैविटी होगा, उस कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। सो एक्चुअली द नेजल कैविटी इज बीइंग ट्रांसवर्सली डिवाइडेड इनटू टू चेंबर्स, जिस चेंबर को हम लोग नाम देंगे नेजल चेंबर। समझ में आया यहां तक? नेजल चेंबर को हम लोग कितने हिस्सों में डिवाइड किए थे? नेजल चेंबर को हम लोग ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं तीन हिस्सों में, दैट इज द नेजल वेस्टिब्यूल, the respiratory region or the conditioner region, and finally the sensory region of the nose, that is known as the olfactory region. तो चलिए आप देखते हैं कि ये सब regions कहां पर होता है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले the nasal vestibule से। बहुत गौर से देखिएगा,
जस्ट आपके जो लैटरल वॉल्स है इसके अंदर की तरफ हम लोग अगर देखेंगे सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेयर इन दैट, ठीक। और यहां पर एक्चुअली देयर इज अ इनफोल्डिंग, देयर इज अ इनफोल्डिंग ऑफ द स्किन विच इज फाउंड। इस पोर्शन में देयर इज अ इनफोल्डिंग ऑफ द स्किन विच इज फाउंड इनसाइड द नॉस्ट्रल्स विच कंसिस्ट ऑफ हेयर। अगर स्किन का इनफोल्डिंग होगा तो हमारे स्किन के ऊपर क्या है, हेयर है। सो एक्चुअली यहां पर जो प्रेजेंस ऑफ द हेयर इनसाइड द नॉस्ट्रल्स होता है दैट इज ड्यू टू द इनफोल्डिंग स्किन विच इज प्रेजेंट, और इसी को हम लोग नाम देते हैं द नेजल वेस्टिब्यूल। इस पोर्शन को हम लोग नाम देंगे नेजल वेस्टिब्यूल। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? So obviously you can understand what is the role of this hair here. So जो external nostrils और ये जो hairs है, इन hairs का main काम होगा कि they will be trapping, they will be helping in trapping the dust particles. They will be helping to trap the dust particles. Clear? सो हम लोग सबसे पहला जो हम लोग अभी देख रहे थे यहां पे वो हमारा कंप्लीट हो गया, द नेजल वेस्टिब्यूल। रेस्पिरेटरी रीजन जाने से पहले मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द ऑल्फैक्टरी रीजन। तो चलिए देखते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन किधर है। अगर आप अच्छी तरह देखिएगा ये क्रिबिफॉर्म ऑफ द इथमॉइड बोन, इसके ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन ओवर हियर, ठीक है, एक्चुअली दिस रीजन विल बी नोन एज द ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी, ठीक है। अच्छा, ऑल्फैक्टरी रीजन मतलब यहां पे ऑब्वियसली जो स्मेल आएगा उस स्मेल को कोई यहां पे आपका स्मेल रिसेप्टर्स होना चाहिए। सो द स्मेल रिसेप्टर सेल्स कहां पे होंगे ना, ये जो लोअर पोर्शन ऑफ द क्रिबिफॉर्म जो प्लेट है यहां पर कुछ सेल्स होते हैं, यहां पर कुछ सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स। तो इसको हम लोग नाम देंगे द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम का काम क्या होगा ना, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या करेगा, ये जो स्मेल है इस स्मेल को सबसे पहले ये सेंस करेगा, इट विल बी सेंसिंग दिस स्मेल एंड देन इट विल बी पासिंग इट टू द ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स, ठीक है। सो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो होगा it will be first detecting, it has the receptors, the smell receptor cells, so it will be detecting the smell and after that it will be passing the sense of the smell to the brain. बात समझ में आ गया? ठीक है। So we have discussed about the olfactory region. अब हमारे पास जो ये पूरा जगह बचा हुआ है यही आपका जगह होगा जिसको हम लोग नाम देंगे द रेस्पिरेटरी रीजन और द कंडीशनर रीजन। क्लियर? तो चलिए अब देखते हैं रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर क्या है ना। रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर सबसे पहला हमें देखना होगा कि यहां पर कुछ बोनी आउटग्रोथ्स होते हैं। क्लियर? ये जो आपका लोअर पोर्शन है दैट इज द पैसेज जहां से आपका इंटरनल नॉस्ट्रिल्स विल बी एंटरिंग इनटू द फेरिंग्स पोर्शन। यहां पर कुछ बोनी आपके आउटग्रोथ्स दिखाई देगा और इस बोनी आउटग्रोथ्स को जनरली हम लोग नाम देंगे टर्बाइनेट्स। सो 3 है। सो जो ऊपर वाला होगा उसको नाम देंगे हम लोग सुपीरियर टर्बाइनेट्स या सुपीरियर टर्बाइनेट। इसको हम लोग नाम देंगे मिडिल टर्बाइनेट और इसके नीचे को हम लोग नाम देंगे लोअर, या इस लोअर टर्बाइनेट को हम लोग इन्फीरियर टर्बाइनेट भी बोलते हैं। इसको हम लोग इन्फीरियर टर्बाइनेट भी बोलते हैं। क्लियर? तो चलिए यहां तक एक बार देख लेते हैं।
हम लोग 3 हिस्सों की बात कर रहे थे. द नेजल चेंबर, we were discussing about the nasal chamber, ठीक, and nasal chamber is being divided into the nasal vestibule, the respiratory region and olfactory region. तो nasal vestibule कौन सा होगा ना, मैंने सबसे पहले बोला था कि जस्ट जहां से आपका nostrils are entering inside the nose, वहां पर एक skin infolding होगा और इस पोर्शन में ही हमारा रहता है द फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर द नेजल वेस्टिब्यूल. क्लियर? क्योंकि यहां पे स्किन इनफोल्डिंग होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द हेयर. ठीक, सो दिस हेयर एक्चुअली व्हाट इट्स फंक्शंस, इट ट्रैप्स द एयर विच ब्रीथ इन एंड हेंस इट विल बी ट्रैपिंग ऑल द डस्ट particles. Clear? Moving to the later part of the nose or the nasal chamber, the upper portion will be known as the olfactory region. Clear? So ये जो आपका cribriform plate है of the ethmoid bone, उसके नीचे हिस्सों में आपके रहेगा the olfactory epithelium, and this epithelium will be having the sensory cells which will be detecting the sense of smell and it will be passing to the brain. And the entire region over here, it will be known as the respiratory region or the conditioner region. Clear? और respiratory region के अंदर सबसे पहले there will be the bony outgrowths. ठीक, और इस bony outgrowth को हम लोग नाम देंगे turbinates, which can be again divided into the superior, the middle and the lower turbinate. अब यहां पर जब आपके turbinates बन जाते हैं, सो कुछ जगह पे आपके ऐसे ही कैविटी नजर आता है. यहां पर ये पोर्शन को हम लोग कैविटी का नाम दे सकते हैं. ठीक है, और दिस कैविटीज आर एक्चुअली नोन एज द नेजल साइनसेस. इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी को ही हम लोग नाम देंगे द नेजल साइनसेस. अब ये नेजल साइनसेस है क्या एंड व्हाट फंक्शन इट डू टू द रेस्पिरेशन? द नेजल साइनसेस के 3 फंक्शन होगा. क्या क्या 3 फंक्शन? सबसे पहला फंक्शन होगा इट विल बी प्रोवाइडिंग द फंक्शन ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन. ह्यूमिडिफिकेशन, हम लोग इस स्ट्रक्चर को हटा देता हूं यहां से. क्लियर? सो ये आपका सबसे पहला काम करेगा ह्यूमिडिफिकेशन. And what do you mean by humidification? ना adding moisture to the air we breathe in. Clear? ठीक है, जब हम लोग सांस ले रहे हैं हो सकता है वो आपका बिल्कुल ड्राई एयर है, it does not contain moisture. So but जब it is passing through the nasal chamber and it will be entering into the pharynx, larynx and finally it will be entering into the trachea, the nasal sinuses over here, they will be actually giving or providing the humid or the moisture, that is therefore it will be the humidification. After that, the next work or the function of the nasal sinuses will be warmification. It will be providing warmth, so that is it will be making the air we breathe in warm. वो जो हम लोग हवा ले रहे हैं उसको गर्म कर देगा. ठीक है, so then humidification, after that warmification. और फाइनली अगर मैं बोलूं इसका जो काम होगा द थर्ड वन, दैट इज इन द क्लीनिंग ऑफ द एयर. ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी रीजन. रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर जो आपके टर्बाइनेट्स है, टर्बाइनेट्स के अंदर देयर आर द साइनसेस, द नेजल साइनसेस, जिनका मेन काम क्या होगा? ह्यूमिडिफिकेशन, वार्मिफिकेशन एंड फाइनली क्लीनिंग. क्लियर? Humidification, adding moisture to the air we breathe in. Warmification, making the air warm. And finally, cleaning. कोई दिक्कत? बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया. ठीक है, अब जो लास्ट पोर्शन है हम लोग उसमें आ गए हैं अभी. दैट इज we will be discussing about the type of epithelium which is present in the entire respiratory region. और ये जो पूरा respiratory region है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे, द लेयर ऑफ द सेल्स, यहां पर आपका एक एपिथेलियम एक्चुअली है क्या ना, अगर कोई भी सरफेस को मैं अगर एक सेलोफेन पेपर से उसको पूरा रैप कर दूं, तो वो जो सेलोफेन पेपर का रैपिंग है उस लेयर को हम लोग नाम दे सकते हैं एपिथेलियम. थीलियम कम्स फ्रॉम द वर्ड थीका, और थीका होता है मेम्ब्रेन. कहां पर है? एपी मतलब जो सरफेस है उसके ऊपर. सो एट द सरफेस देयर विल बी अ लाइनिंग ऑफ द सेल्स, दैट विल बी योर एपिथेलियम.
तो ये जो एंटायर आपका रेस्पिरेटरी रीजन होगा, यहां पर भी चारों तरफ एक लाइन ऑफ सेल्स आपका कवर करके रहता है। सो बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट के अंदर कि कौन से लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट ओवर देयर एंड व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर फाउंड। समझ में आ गया मैं क्या बात बोल रहा हूं ना? ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है, इसके चारों तरफ इंटरनली आपका एक एपिथेलियल शीथ प्रेजेंट है, उसका नाम पूछा जाता है। क्लियर? आप देखो, इसका नाम अगर मैं बोलूंगा तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम है, पर उसको चलिए हम लोग समझते हैं। तो जो एपिथेलियल सेल्स है, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स विल बी प्रेजेंट? व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स will be covering the entire nasal chamber. ठीक है? स्पेशली जो आपका रेस्पिरेटरी रीजन है, रेस्पिरेटरी रीजन है। ठीक है? क्या होगा, कौन सा होगा? चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं अब ना। यहां पर जो एपिथेलियल सेल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग अलग करके पूरा पढ़ेंगे। इट इज नोन एज स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर ciliated glandular epithelium। बहुत बड़ा नाम है, ठीक? जिसको शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो आप, PSCCGE। क्लियर? सो स्यूडोस्ट्रैटिफाइड, कॉल्यूमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, जितने भी है सब कुछ मैं यहां पे डाल दिया। ठीक है? अब एक एक चीज को समझेंगे, समझने में बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि अगर एपिथेलियम है, सो ऑब्वियसली ये एक मेम्ब्रेन होगा दैट विल बी अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ समथिंग। तो देयरफॉर देयर विल बी अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये आपका होगा जिसके ऊपर हमारा membrane of the cells will be forming the epithelium। तो हम लोग बोल सकते हैं this is any kind of a region, और इस region का जो surface होगा, that surface के ऊपर जो cells होते हैं, उसी type of cells को हम लोग नाम देते हैं epithelial cells, and the membrane forms the epithelial membrane। so यहां पे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। pseudostratified, stratified का मतलब क्या है? strata, ठीक? the layers। तो स्ट्राटा या स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो जाता है लेयरिंग। क्लियर? सो नॉर्मली यहां पर कैसे करके सेल्स मिलते हैं ना, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो कोई सेल्स छोटा, कोई सेल्स बड़ा, ऐसे टाइप ऑफ सेल्स हमें यहां पर मिलेंगे फॉर इंस्टेंस। ठीक? और हर सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा, हर सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियस होगा। ठीक? और इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर हेयर लाइक सीलिया भी प्रेजेंट है। इनके ऊपर हेयर लाइक सीलिया ही प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसे टाइप ऑफ सेल्स हमें मिलेंगे इन द कवरिंग ऑफ द नेजल, मतलब आपका जो चेंबर है दैट इज द रेस्पिरेटरी रीजन, वहां पे हमें ऐसे टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे। अब देखिए, मैंने अभी बोला कि स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयरिंग, बट अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर मुझे सिर्फ एक ही लेयर ऑफ सेल्स मिल रहा है। हो सकता है ये जो लेयर्स है, ये लेयर आपका या जो ये जो सेल्स है, दे आर डिफरेंट इन देयर हाइट। ये जो सेल्स है इंडिविजुअल, दे आर ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ठीक? बट इट इज ओनली वन लेयर ऑफ सेल ओवर हियर। सो देयरफॉर यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है दैट इज स्यूडोस्ट्रैटिफाइड।
तो स्ट्रैटिफिकेशन जो है एक्चुअली ये कहां कैसे करके ऑब्जर्व होता है ना, जब ऐसे टाइप ऑफ सेल्स को हम लोग या कोई भी स्किन सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, सो वहां पर नॉर्मल अगर स्ट्रैटिफिकेशन होगा तो वहां पर कुछ इस तरीके से दिखता है कि एक लेयर ऑफ सेल्स आपके ये हुए, दूसरे लेयर ऑफ सेल्स इसके ऊपर ये हुए। सो यहां पर हमें अच्छी तरह लेयरिंग ऑफ द सेल्स मिल रहा है। ये आपका तीसरे लेयर ऑफ सेल्स हुआ। सो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं अच्छा इनके भी आपके न्यूक्लियस होगा, ऑल सेल्स विल बी हैविंग न्यूक्लियस। ठीक, हाँ या ना, सब कोई साथ हो ना, चलो। सो यहां पर लेयर ऑफ सेल्स हमें नजर आ रहा है। सो एक्चुअली जब हम लोग मतलब एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हम लोग लाइन ऑफ द न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। लाइन ऑफ द न्यूक्लियस मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि चलो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग लेयर 3 नाम देते हैं, इस लाइन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग लाइन 2 नाम देते हैं, इस लाइन ऑफ न्यूक्लियस को हम लोग लाइन 1 नाम देते हैं। ठीक है, सो जिसके अंदर अलग अलग लाइंस में आपके न्यूक्लियस का मिलेगा, एक्चुअली न्यूक्लियस का स्टडी होगा, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। क्लियर? बट इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रैटिफाइड कैसे बोलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल, यहां पर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, तो इसीलिए इसको हम लोग नाम दे सकते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोल सकते हैं। बट वाई वी आर नेमिंग दिस स्यूडो स्ट्रैटिफाइड? यहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे, सो हमें न्यूक्लियस का देखो, एक लाइन अगर मैं बोलूं, सो दिस इज 1 लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं इस लाइन का, सो यहां पर भी द सेकेंड लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, एंड अगर मैं बात करूं इस लाइन का, सो यहां पर देयर इज द थर्ड लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का अलग अलग लाइनिंग हो रहा है, मतलब अ केस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन और लेयरिंग। बट क्या एक्चुअली में यहां पे अलग अलग लेयर ऑफ सेल्स है? नहीं है। ठीक, सो देयरफॉर वी टर्म दिस एज स्यूडो, बिकॉज स्यूडो का मतलब ही क्या हो जाएगा, इट विल बी मीनिंग फॉल्स। तो स्ट्रैटिफाइड का मतलब होता है लेयरिंग, और लेयरिंग हम लोग किस आधार पे देखते हैं ना, द प्रेजेंस ऑफ द लाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियस। तो लाइनिंग ऑफ द न्यूक्लियस यहां पर भी है, बट यहां पर सेल्स का भी लेयर्स प्रेजेंट है। सो देयरफॉर दिस इज अ ट्रू लेयरिंग या ट्रू स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सेल्स, दैट इज इट इज स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। बट यहां पर न्यूक्लियस अलग अलग आपके पैटर्न या लाइन में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट जब हम लोग सेल्स की लेयर्स में आ जाएंगे, सो ऑल द सेल्स आर इन अ सिंगल लेयर, सिर्फ उनके डिफरेंस है हाइट के अंदर, बट देयर इज ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। So this type of an arrangement of cells is known as pseudo stratified. Clear? ये बात अच्छी तरह समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट में। कॉल्यूमनर। कॉलम का मतलब क्या है ना, कॉलम हम लोग हमेशा उस सरफेस को बोल सकते हैं जिस सरफेस का जो ब्रेथ होगा, ब्रेथ से आपका हाइट ज्यादा होगा, जो ब्रेथ होगा उस ब्रेथ से आपका जो हाइट है वो हाइट ज्यादा होगा। ठीक है, उसी को हम लोग कॉलम बोल सकते हैं। सो यहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे कि जो सेल्स है उसका जो हाइट है ब्रेथ से ज्यादा है। ठीक है, सो द लेंथ और द हाइट इज मोर देन द ब्रेथ। सो इस टाइप ऑफ सेल्स को हम लोग नाम देते हैं कॉल्यूमनर सेल्स। आफ्टर दैट सीलिएटेड। सो ऑब्वियसली ये तो हमें समझ में ही आ रहा है, क्योंकि जितने भी सेल्स है सबके अंदर उसके अपर पोर्शन में प्रेजेंस ऑफ सीलिया है, प्रेजेंस ऑफ सीलिया इज देयर। सो इसलिए हम लोग इसको सीलिएटेड एपिथेलियम, दीज आर द सीलिया व्हिच आर प्रेजेंट। एंड फाइनली ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर का मतलब क्या है ना, दैट एपिथेलियम विच विल बी फॉर्मिंग सर्टेन काइंड ऑफ ग्लैंड्स। और अगर ग्लैंड होगा तो ऑटोमेटिकली वो ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगा अपने अंदर, कुछ ना कुछ उसके जूसेस होंगे, कुछ ना कुछ उसके सीक्रेशंस होंगे। सो ऐसे ही आपके यहां पर भी अलग अलग ग्लैंड्यूलर सेल्स मिलेंगे, अलग अलग ग्लैंड्यूलर सेल्स यहां पर मिलेंगे कुछ कुछ, और जो ग्लैंड्यूलर सेल्स क्या करेंगे, दीज आर द ग्लैंड्यूलर cells which are present in this type of epithelium, and they will be secreting mucus. ये collectively क्या substance secrete करेगा? Mucus.
और ये म्यूकस शब्द से तो आप पहले ही परिचित है, क्योंकि हम लोग पूरे डिस्कशन कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जहां पे द एंटायर एलिमेंट्री कैनल के अंदर थे गॉबलेट सेल्स या जाइमोजन सेल्स विच सीक्रेटेड म्यूकस. क्लियर? सो म्यूकस क्या करेगा? इट इज अ वाटरी फ्लूइड. सो ये वाटरी फ्लूइड एक्चुअली हमारे नाक में क्या काम कर रहा है ना, जो भी आपके यहां पर द डस्ट पार्टिकल्स आ रहा है, दिस इज एक्चुअली ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स. पहले डस्ट पार्टिकल्स का ट्रैप करने का काम किसका था? पहले आपका डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम था द नेजल वेस्टिब्यूल के अंदर जो आपके हेयर्स है. बट बाय द वे, अगर और भी फाइन डस्ट पार्टिकल्स है विच नाउ एंटर्स इनटू द आपके थ्रू दिस टर्बाइनेट्स इनटू द साइन्यूसिटिस. सो इसके पूरे जो आपका लेयरिंग है, उस पूरे लेयरिंग में प्रेजेंस है क्या चीज? दिस काइंड ऑफ अ स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनर सिलिएटेड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. सो इसके जो ग्लैंड्यूलर सेल्स है वो सीक्रेट करेगा म्यूकस, एंड दिस म्यूकस विल बी फाइनली हेल्पिंग इन ट्रैपिंग द फाइन टू फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल्स. ठीक है? फाइन टू फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल. यहां पे फाइन टू फाइनेस्ट का मतलब क्या है? जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल, उसको भी ये आसानी से ट्रैप करने की क्षमता रखता है. ठीक है? तो देखिए ये नेचुरल मेडअप ही इसका ऐसा है ताकि बहुत अच्छी तरह कोई भी डस्ट वगैरह हमारे नाक से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्लियर है? समझ में आया? मैं यही चीज नोट्स के हिसाब से भी आपको भेजूंगा. आज यहीं तक ही हम लोग रखते हैं. ठीक? सो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी डिटेल. यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन योर कॉपी, and from that you have to label it and understand each of the details which I have spoken today over here. Clear? Tomorrow we will be discussing about the later part of the pharynx, the larynx, and finally the lower respiratory tract. So till then, stay well, study hard. Thank you.